So today we will be discussing the topic Kalman method of measuring the earth pressure, and then we will moving on to another new topic, that is the slope stability. So let us first begin the Kalman method. So it is the same as the trial wedge method that we studied for the Coulomb theory there, alright, that is based on Coulomb's theory. It is this method, Culmann's graphical method, is convenient for cohesionless soils active pressure determination. So we will see how this active pressure is getting determined, alright. So what are the few advantages in this graphical method that we are studying here, that is it can be used for any shape of the backfill surface, चाहे वो inclined हो चाहे वो horizontal हो, किसी भी के लिए ये use किया जा सकता है. Next is different types of surcharge loads, alright. Third is it can be used for even for the layered backfills. अगर अलग अलग layer of soils है, let's say एक कोहेसिव का लेयर है, देन एक कोहेजनलेस का लेयर है, सो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, it involves the construction of force triangles. Okay, so let's say there are some forces that is acting in this direction and say this direction and say this direction. So with these forces we can construct a triangle, and then we can take the different measurements according to it and how these forces are acting. Alright, so first of all we have to assume a number of trial planes, and then we will be getting on there which is the failure trial plane, okay, which is the failure plane, which is the exact failure plane there. So in the force triangle here, angle between W and P, there is some weight W that is acting, and then there is something that is P. It is equal to 90 minus theta minus this delta, that is also equal to psi angle, alright. And angle between W and the reaction R is what, delta minus lambda minus phi here. Okay, so let us begin how this earth pressure is obtained here. So I have broken down it into a few steps there. So first of all you can see here, this is the B point here and this is the A point. So this is the retaining wall here that is forming this line here. Okay, so very first thing you have to do, you have to draw a line here, okay, line AF, and it is drawn at an angle of alpha, sorry, this phi angle, alright, this internal friction angle to the हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज द वेट लाइन और स्लोप लाइन. अब इसे वेट लाइन या स्लोप लाइन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दिस लाइन AF. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस प्लेन्स, ओके, लाइक दिस AC1, ऑलराइट, और वी से दिस, इफ यू टेक दिस AC4, सो वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल. Okay, so we are taking these different triangles. We mark this C1 point, C2 point, C3 point and then C4 point. So trial planes are being formed. अब फेलियर होने को तो क्या होगा कि वेज है, अगर ये लेट्स से इफ दिस इज द वेज वी आर कंसिडरिंग, तो अगर फेलियर होना होगा तो क्या पता इस पूरे का फेलियर हो जाए, है ना, या फिर एक चीज़ और हो सकती है, क्या पता इस वेज का फेलियर हो जाए. ऑलराइट, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन से प्लेन पे फेलियर अकर करेगा. तो हमने कई सारे फेलियर प्लेन यहाँ पे मान रखे हैं कि AC1 ये भी फेलियर प्लेन हो सकता है, AC2 ये भी फेलियर प्लेन हो सकता है, AC3 ये भी फेलियर प्लेन हो सकता है और AC4 भी फेलियर प्लेन हो सकता है. नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके, अबाउट द ट्रायल प्लेन्स. नाउ वेट्स ऑफ द ट्रायल वेजेस, दैट इज ABC1, ABC2. लेट्स से हम अगर एक इसमें से हम पहला वाला लेते हैं ये, ठीक, ये वाला वेज, तो इसका कुछ ना कुछ वेट नीचे लग रहा होगा, इस वेट के कारण कुछ ना कुछ फेलियर कॉज करेगा. सो दिस इज द ABC1, दिस इज द वेट हेयर. सो जो भी यहाँ पे लेट से आपने 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का स्केल आपने ले रखा है, ओके, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर हेयर. सो यू कैन ईजिली से व्हेन यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर यू विल ईजिली से टेक इट एज 1 सेंटीमीटर. अब जितना भी होगा, जितना भी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी आपने स्केल ले रखी है उसके अकॉर्डिंग वो होगा. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड टू सेम स्केल, सम स्केल एज AD1, AD2 एटसेट्रा ऑन द वेट लाइन AF. अब जो वेट लाइन AF है उस पर आपने D1 पॉइंट मार्क कर दिया, D2, D3, D4. जो आपने BC1 डिस्टेंस लिया था या BC2 डिस्टेंस लिया था या फिर BC3 डिस्टेंस लिया था या फिर BC4 डिस्टेंस लिया था, वैसे ही आप AD1 लोगे, AD2 लोगे, AD3 लोगे या फिर AD4 लोगे. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स हियर. नाउ एंगल बिटवीन AF एंड एनी ट्रायल प्लेन. अब ये देखिए आप, ये अलग अलग ट्रायल प्लेन्स है ना. अब इस AF के बीच में, दिस लाइन AF एंड this any trial plane, okay, this any trial plane, let's say if you are considering this trial plane, तो इसका एंगल कितना हो गया, this is what, lambda minus phi, this angle here, है ना. अगर हमने ये AF लाइन ली है और ये ट्रायल प्लेन माना है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, this is what, lambda minus phi. क्योंकि आपको ये पता है कि ट्रायल प्लेन से जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल, ट्रायल प्लेन से जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल वो क्या होता है, लैम्डा. और आपको ये पता है कि जो AF लाइन है इसका एंगल कितना है, दिस इज
phi here. So this angle will be what? Lambda minus phi. Okay, so let's move on now. Now what we have to do, after we have constructed this thing, now we will be drawing this earth pressure line. अब ये earth pressure line क्या है? AG. Okay, and this line is drawn at an angle of psi from this AF line. Okay, so ये earth pressure line यहाँ पे AG line बना दी हमने यहाँ पे, जो कि एंगल बनाती है कितना? psi. और ये psi कितना है आपको पता है? 90 माइनस थीटा माइनस डेल्टा. तो अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल की बात कर दूँ, ये नॉर्मल है और ये एंगल डेल्टा है. ओके, दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज साई हेयर. तो ये वाला एंगल कितना होगा? जो भी इंक्लाइंड हो रहा होगा वही एंगल होगा. सो वी कैन इजीली से दैट डेल्टा प्लस साई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री. ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू talk about this psi angle here, so the psi will be coming out to be 90 minus delta minus theta. So with that angle we are drawing this earth pressure line. अब यही earth pressure हमें आगे हेल्प करेगा कि एक्चुअल में जो भी फेलियर प्लेन है, लेट से कोई भी फेलियर प्लेन आ रहा है, लेट से ये फेलियर प्लेन हमारा निकल के आया, तो वो उसके ऊपर कितना अर्थ प्रेशर का वैल्यू लग रहा होगा. ठीक है, तो अभी हम उसको देखेंगे. सो हमने ये बना लिया इसमें अर्थ प्रेशर लाइन. अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नो लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू दीज पॉइंट्स D1, D2, D3 एंड D4. ऑलराइट, विच आर पैरेलल टू दिस अर्थ प्रेशर लाइन. सो इस अर्थ प्रेशर लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन बनाई. देखो ये वाली आप, देन ये वाली D2 E2, देन D3 E3, देन D4 E4. तो हमने ये लाइन किसके पैरेलल बनाई? ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, एंड देन ये चारों लाइन आपस में पैरेलल है. सो हमने जो यहाँ इस स्टेप में किया वो क्या किया? हमने D1 E1 लाइन बनाई. और ये लाइन किसके पैरेलल है? अर्थ प्रेशर लाइन के. ओके, सो वी हैव ड्रॉन दीज लाइन्स थ्रू D1 D2 एटसेट्रा पैरेलल टू द अर्थ प्रेशर लाइन AG टू इंटरसेक्ट द करस्पॉन्डिंग स्लिप प्लेन्स. अब देखो, आपको मैंने ये बताया कि AC1 हुआ, AC2 हुआ या फिर AC3 हुआ, दीज आर व्हाट? दीज आर करस्पॉन्डिंग फेलियर प्लेन्स. अब ये जैसे हमने पहले वाला वेज लिया, हमने माना कि ये वाला वेज यदि फेल कर रहा हो तो, है ना, इसका कुछ W1 वेट लग रहा होगा. यदि ये वेज फेल करता है तो हम इसके ऊपर जो है यहाँ पे E1 पॉइंट पे हमने ये चीज़ बना दी. अब हमने अगर दूसरा अज्यूम करा हो, C2 वाला बनाया हो, और हमने वेज अज्यूम किया हो ABC2 कि ये फेलियर कॉज कर रहा है, तो हमने क्या किया होगा? D2 से E2 तक यहाँ पे हमने पॉइंट बनाए होंगे. ओके, सो दिस D2 से E2, देन थर्ड वाला यदि हमने अज्यूम किया होगा तो D3 से E3, फोर्थ वाला अज्यूम किया होगा तो D4 से E4 रहा होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज AD1 E1, AD2 E2 एटसेट्रा रिप्रेजेंट द ट्राइंगल ऑफ फोर्स हेयर. ओके, सो इफ यू आर टेकिंग दिस ट्राइंगल, है ना, यदि हम पहला वाला फेलियर प्लेन मान रहे हैं AC1 वाला, तो हमारे लिए ट्राइंगल कौन सा होगा? फोर्स ट्राइंगल दिस AD1 E1. ओके, यदि हम दूसरा वाला लेते हैं, लेट से हम चौथा वाला ले रहे हैं, अगर हम ये C4 ले लेते हैं, तो इसके लिए क्या होगा ट्राइंगल? दिस AD4 E4. तो दिस विल बी द ट्राइंगल देयर. ओके, सो फॉर द ट्रायल वेजेस ABC1, ABC2 एटसेट्रा. तो हमने अलग अलग लिया है तो अलग अलग के हिसाब से हो जाएगा. जो मैंने आपको बताया वो किसके हिसाब से बताया? एक मैंने आपको C1 के हिसाब से बताया, एक मैंने आपको C4 के हिसाब से बताया. एंड द लेंथ D1 E1, D2 E2 रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ अर्थ प्रेशर. तो यहाँ पे ये समझिएगा, आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर रहे होंगे, मैंने तो आपको यहाँ पे इस तरह बताया है. तो ये जो D1 E1 है, D2 E2 है, ये क्या है? ये अर्थ प्रेशर का मैग्नीट्यूड है. कितना अर्थ लैटरल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस हेयर D2 E2. जितने भी सेंटीमीटर में आएगा और आपने जो भी स्केल ले रखी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. देन यू विल बी फाइंडिंग आउट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ प्रेशर. तो अभी भी हमें पता नहीं है कि कौन सा फेलियर प्लेन है. अभी हमने जितने अज्यूम कर रखे हैं फेलियर प्लेन, हमने उसी की बात करी है सिर्फ. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. अब हमने क्या किया? जो E1, E2, E3, E4 रिस्पेक्टिव फेलियर प्लेन्स पे जो लाइंस थी, है ना, जो पॉइंट्स थे, हमने उनको क्या किया? ज्वाइन कर दिया. और ज्वाइन करके हमने एक कर्व बनाया. इसी कर्व को कलमैन कर्व कहा जाता है. ओके, सो दिस इज द कर्व हियर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी सीइंग व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. अब देखिए, D1 E1 एक प्रेशर होगा, D2 E2 एक प्रेशर होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही होगी प्रेशर की, वो हमें पता करनी है. क्यों? जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्रेशर की, वहीं पे क्या होगा? लेटरल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा. वहीं पे क्या होगा? फेलियर अकर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. अच्छा, तो अगर हम इस कर्व को ले लेते हैं जो कि कलमैन कर्व है. ओके, आई एम डिनोटिंग इट बाय CC देयर. सो यहाँ पे समझिएगा, यदि मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा, बट ये टेंजेंट जो है, दिस वन इज द टेंजेंट हेयर, ये टेंजेंट जो ब्लू लाइन से यहाँ शो कर रखा है, ये टेंजेंट AF लाइन के पैरेलल है. ओके,
So a tangent is drawn parallel to AF, alright. So this is one thing. Now through the line this DE, okay, DE is there, then the line DE is drawn which is parallel to, अच्छा हम D1 D2 या D2 E2 या D4 E4 हम कैसे बना रहे थे, इसको हम पैरेलल किसके कर रहे थे, इस अर्थ प्रेशर लाइन के। सिमिलरली जब हम एक D पॉइंट मान रहे हैं और E पॉइंट मान रहे हैं जो कि टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है इस AF के पैरेलल पे, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी एक लाइन बना दी जो कि क्या है, अब दिस वन लाइन इज द DE, है ना, और यही क्या होगा, यही मैक्सिमम प्रेशर होगा। सो DE विल बी रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि DE क्या है, एक तरीके से एक्टिव अर्थ प्रेशर है। ओके, जो भी स्केल आपने अडॉप्ट कर रखी होगी उसके हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ये मैक्सिमम अर्थ प्रेशर लग रहा है, यानी यही P है जो कि फेलियर कॉज कर रहा होगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, ओके, और ये E पॉइंट से पास कराते हुए मैं इसको यहाँ पे C पे लेके जाऊँ, तो हमने अज्यूम क्या क्या किया था, हमने कहा था कि भाई AC1 हो सकता है या AC2 हो सकता है या AC3 हो सकता है या AC4 हो सकता है, क्या हमारा फेलियर प्लेन। बट एक्चुअल में जब हमने देखा तो हमने ये चीज़ डिटरमिन की किससे, कलमैन कर्व की मदद से, कि एक्चुअल में जो फेलियर होगा वो ट्राइंगल ABC के कारण होगा, है ना, B पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा और A पॉइंट ये रहा। तो यदि फेलियर होगा तो इस वेज के कारण होगा। ओके, सो दिस ABC ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ABC, ये जो भी वेट लगा रहा होगा उसके कारण ये फेलियर कॉज करेगा। सो दिस वेज ABC इज देयर एंड द क्रिटिकल स्लिप प्लेन इज AEC। ओके, सो ये जो लाइन है ये क्या है, इसके अलोंग फेलियर होगा, ऑलराइट, इस AEC वाज द क्रिटिकल स्लिप प्लेन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी मूविंग ऑन इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अच्छा, ये इसी मॉड्यूल 5 का दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहला पढ़ा अर्थ प्रेशर और वो भी शेयर स्ट्रेंथ से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। अब हम जब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की बात करेंगे तो इसमें भी हम बात करेंगे किसकी, शेयर स्ट्रेंथ की, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ ही कंट्रोल कर रहा है किसी भी स्लोप की स्टेबिलिटी को। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स दे रखे हैं, एक स्टेबिलिटी एक स्लोप्स, तो हम दोनों को देखेंगे कि स्लोप क्या होते हैं और उसकी स्टेबिलिटी कैसे कैसे डिटर्मिन होती है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट हियर। स्लोप्स और द एम्बैंकमेंट्स are provided in river drainage works, in earthen dams, in railways and the roadways। जैसे आप यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे का एग्जांपल लेते हो तो बीच में तो रोड आपको दिख रही है, हाईवे आपका एक्सप्रेसवे दिख रहा है, जो साइड में जो एम्बैंकमेंट रहता है दैट इज देयर, और ये जो स्लोप पे होता है ना, दैट शुड बी रिमेनिंग स्टेबल। यदि ये स्टेबल नहीं होगा तो जो एक्सप्रेसवे या हाईवे या जो भी रोड्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क आएगा। So this slope should be stable here. So why and what forces can cause instability in this thing? Now these forces can be gravity force or the self weight, कि खुद के वेट के कारण ही स्लाइड कर जाए, है ना। ये यदि स्लोप है अभी खुद के वेट के कारण यदि स्लाइड करता है तो फेलियर क्या ना कर। ओके, सीपेज फोर्स इज देयर, वी हैव ऑलरेडी इन द यूनिट सेकंड वी हैव स्टडीड दैट सीपेज फोर्स कितना बड़ा फोर्स है, वो डैम के लिए भी, डैम के एम्बैंकमेंट के लिए भी हार्मफुल रहता है। देन अर्थक्वेक फोर्स, इफ द अर्थक्वेक इज देयर देन ऑल्सो डायनेमिक फोर्सेज कैन बी इंड्यूस्ड इन देयर। सो लेट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अलॉट व्हेन वी डिस्कस दैट तेहरी डैम इन उत्तराखंड इज देयर, इफ अर्थक्वेक कम्स देन प्रॉब्लम कैन बी देयर, है ना। Then there is sudden drawdown of the water table. If this also happens, then also there is loss of shear strength there. Okay, then erosion due to flowing water. यदि मान लीजिए यहीं से पानी फ्लो कर रहा होता है तो क्या करेगा, ये इतने पार्ट को इरोड करके लेके जाएगा, और जो हमने सॉइल लगा रखी थी रोकने के लिए वो अब क्या हो रहा है, वो काम वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। सो देयर कैन बी इरोजन ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर। नाउ द सिक्स्थ इज द एक्सकेवेशन नियर द स्लोप। व्हेन यू एक्सकेवेट नियर द स्लोप यू आर ट्राइंग टू रिमूव द सॉइल विच इज एक्चुअली ट्राइंग टू बाइंड अप द स्लोप देयर। तो ये सारे फोर्सेस के कारण, इन सभी फोर्सेस के कारण स्लोप फेलियर कैन आकर। अच्छा, स्लोप की हमने स्टेबिलिटी की यहाँ बात करी। अब हम यदि बात करें कि स्लोप कितने प्रकार के होते हैं तो एक होता है इनफाइनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप। जैसा इसका नाम है पहला, इनफाइनाइट स्लोप। ओके, सो वी डोंट नो द एंड, ओके, वी डोंट नो द एंड्स देयर। सो यदि मैंने ये ग्राउंड सरफेस मान लिया है ना, ये मैंने ग्राउंड सरफेस मान लिया है और उसके नीचे मैं किसी भी डेप्थ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कितनी डेप्थ पे जाके वो स्टेबल है, कितनी डेप्थ पे वो नहीं स्टेबल है, या यदि फेलियर करेगा तो कौन सा वेज फेलियर करेगा, है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इट रिप्रेजेंट्स बाउंड्री सरफेस
of the semi-infinite soil mass such that properties of the soil at a similar depth below the ground are the same. Let's say यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं z डेप्थ पे, यदि ग्राउंड सरफेस ये है, ठीक, यदि ग्राउंड सरफेस ये है और मैं z डेप्थ पे यहाँ पे चला जाता हूँ तो फेलियर तो भी सॉइल की प्रॉपर्टीज सेम है. यदि मैं इस पॉइंट से z डेप्थ यहाँ नीचे चला जाता हूँ तो भी सॉइल की प्रॉपर्टीज सेम है. तो यदि ऐसा होता है तब हम इस इनफाइनाइट स्लोप का डिस्कशन कर रहे होते हैं. अच्छा, यदि मैं कहूँ कि ये जो सॉइल मास है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड सरफेस और ये वाला क्या है, ये सॉइल मास है. अच्छा, कुछ ऐसा हो कि इसके अलोंग, इस प्लेन के अलोंग सॉइल फेल कर जाए. ओके, सो दिस एंटायर पार्ट विल बी स्लाइडिंग डाउन देयर. और अगर ये स्लाइड कर जाता है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वेज विल बी देन फेलिंग. ऑलराइट, एंड इफ दिस फेल्स देन the failure of the infinite slope will be occurring, and this failure mode is what, sliding mode. And also understand that this ground surface is here and this failure plane is there, so this ground surface and failure plane are parallel to the each other. Okay, so this happens usually in the mountain slope there. Now if you talk about finite slopes, तो finite है मतलब कि दोनों एंड पे, ओके, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी. हमने पिछले वाले में देखा कोई लिमिट नहीं थी, हम चाहते तो इसको हम इधर एक्सटेंड कर देते और इसको हम इधर की साइड एक्सटेंड कर देते और जितना भी स्लोप होता दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना. दिस वाज द इनफाइनाइट स्लोप. अब हम फाइनाइट की बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे आके रुक गया और यहाँ पे आके ये चीज़ रुक गई है. ओके, सो द स्लोप इज ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट एंड इज बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस. तो यहाँ पे देखो टॉप पे यहाँ पे बाउंडेड है ग्राउंड सर्फेस से और बॉटम पे किससे बाउंडेड है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई हार्ड स्टेटम हो, है ना, या फिर कोई रॉक आ गया हो तो उसके कारण यहाँ पे रुक गया हो. अच्छा, फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप इज ड्यू टू रोटेशन. ऑब्वियसली बात है, जब ये फेल किया तो क्या हुआ होगा, ये करना तो चाह रहा होगा मान लो स्ट्रेट अगर, ठीक, बट किसी प्रॉपर्टी से जो हम अभी देखेंगे कि क्या पता यहाँ की सॉइल ज़्यादा हार्ड हो, है ना, क्या पता ऊपर की सॉइल जो है वीक हो. तो यदि ऐसा होता है तब उस समय फेलियर जो है कहीं ना कहीं क्या पता यहाँ ना हो के यहाँ पे हो जाए, यहाँ ना हो के यहाँ पे हो जाए. तो ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं. अच्छा, फेलियर प्लेन इज आइदर सर्कुलर और स्पाइरल. तो जो फेलियर प्लेन है जो आपने पिछले वाले में देखा था पैरेलल था ग्राउंड सरफेस के, यहाँ पे क्या है, ये चीज़ सर्कुलर या स्पाइरल है. अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, ये यहाँ पे ये रहा स्लोप, ओके, ये ग्राउंड सरफेस है और एक ये जो नीचे वाला सॉइल है. अच्छा, यदि फेलियर इस स्लोप के कारण हो जाए, ठीक, इस स्लोप के सामने सामने हो जाए, यानी मैं कहूँ कि ये वाली जो मिट्टी है, ठीक, ये वाली मिट्टी जो है ये स्लाइड कर जाए. यदि ये स्लाइड कर जाती है तो क्या होगा, इतना पार्ट तो निकल गया. यदि इतना पार्ट निकल जाता है, ओके, तो क्या हुआ, फेलियर कॉज कर गया. एंड दिस फेलियर इज ड्यू टू दिस पोर्शन ओनली. और देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एकदम इंटैक्ट रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई. ऑलराइट, यदि मैं दूसरा कहूँ कि ये जो टो है स्लोप का, यदि इसके अबाउट फेलियर कॉज कर जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा मास फेल कर जाए, तो ये दूसरे प्रकार का फेलियर होगा, है ना. अच्छा, यदि मैं कहूँ कि ये पूरा का पूरा मास, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि पूरा का पूरा मास यदि फेल कर जाए, ठीक, पूरा स्लाइड कर जाए, यदि ठीक रोटेट कर जाए या स्लाइड कर जाए मैं कहूँ, तो यदि ये रोटेट कर जाता है तब क्या होगा, दिस एंटायर मास विल बी फेलिंग देयर. अच्छा, ये जो स्लोप का एंगल है दिस इज गिवन बाय अल्फा है. ओके, तो ऐसा ये देखा गया है कहाँ पे, रेलवेज और रोडवेज में. जैसे आपका इनफाइनाइट स्लोप का एग्जांपल है माउंटेन स्लोप, वैसा ही इस तरीके का फेलियर जो कि रोटेशनल हुआ या सर्कुलर स्पाइरल हुआ, दिस इज सीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ दिस रेलवेज एंड रोडवेज देयर. तो जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स दिए वो मैंने स्लोप फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर के दिए. तो अब आप ये समझिए, यदि स्लोप के सामने सामने यहाँ पे स्लोप का फेलियर हो जाए, है ना, स्लोप यदि फेल कर जाए तब क्या होगा, दिस इज द स्लोप फेलियर, पहली चीज़, है ना. ये वाला मास यदि टूट के आगे गिर जाता है या रोटेट करके स्लाइड कर जाता है. अच्छा, यदि टो के अबाउट फेलियर हो, ठीक, इस टो के अबाउट फेलियर हो, यानी जो फेलियर प्लेन है ये कहाँ से पास कर रहा है, ये टो से पास कर रहा है, तब दैट इज द टो फेलियर देयर. अच्छा, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, इन दोनों को हम फेस फेलियर का नाम देंगे. क्यों फेस फेलियर, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट, नथिंग बट द फेस ऑफ द स्लोप देयर. यही तो है जिसके यही सामने आपको, दिस इज द फेस ऑफ द स्लोप हेयर. तो यदि टो फेलियर होता है या फिर स्लोप फेलियर होता है, दैट इज नथिंग बट द फेस फेलियर. अच्छा, तीसरा एक है बेस फेलियर. अब हम बेस फेलियर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा मास यदि फेल कर जाए, है ना, यानी कि ये जो रप्चर सरफेस है ये
यहाँ नीचे से पास करे, ये टो से पास नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे ये नीचे से पास कर रहा है. सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ फेलियर इन द फाइनाइट स्लोप्स. अच्छा, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे स्लोप फेलियर की, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा. हियर द फेलियर स्लोप इंटरसेक्ट्स द स्लोप अबव द टो. सो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आप खुद ही देखो, टो के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस इज द पॉइंट देयर. तो दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर. अच्छा, ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स व्हाट हैपेंस वेयर द सॉइल मास नियर द टो इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ओके, इन कंपैरिजन टू द सॉइल मास अबव द टो, है ना. यानी कि यहाँ पे यदि रिजिड सॉइल मास हो, ओके, यदि रिजिड होता है तो क्या होगा, यहाँ पे फेलियर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ऊपर पे यहाँ पे फेलियर कराना थोड़ा सा आसान रहेगा. सो दैट इज द पॉइंट देयर, ओके. यदि हम बात करते हैं दिस सेकंड वन, दैट इज द टो फेलियर हेयर. हेयर द फेलियर सरफेस पासेस थ्रू द टो, है ना. जब हमने दूसरा पॉइंट की बात करी, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर, दिस टो फेलियर विच हैपन्स मोस्ट कॉमनली देयर. जहाँ पे भी टो होगा ये पूरा का पूरा मास स्लाइड कर जाता है, या रोटेट कर जाता है, या रोटेट करके ये फेल कर जाता है, ओके. सो दिस टेक्स प्लेस फॉर हाई स्लोप एंगल्स एंड व्हेन द सॉइल मास अबव एंड बिलो द टो इज होमोजीनियस. अब आप समझो, यदि यहाँ पे भी लेट से सॉफ्ट है और यहाँ पे भी सॉफ्ट सॉइल है, तो जब फेलियर होना होगा तो वो डायरेक्टली टो के थ्रू हो जाएगा. पिछले वाले केस में आपने देखा, जब स्लोप फेलियर की मैंने बात करी, तो यहाँ पे यदि रिजिड है ना, और यहाँ ऊपर पे सॉफ्ट है, तब क्या होगा, रिजिड वाले को तो फेल नहीं करा पाएगा सॉइल, है ना. जब फेलियर हो रहा होगा स्लोप का, तो नीचे वाले को तो फेल नहीं करा पाएगा, बट ऊपर वाले को जरूर वो फेल करा देगा, है ना. बट यहाँ पे जब हम टो फेलियर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे सॉइल सेम है. अच्छा, बेस फेलियर की यदि हम बात करते हैं, तो हेयर द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो. तो जितना स्लोप था वो तो यहीं तक था, बट स्लोप के नीचे जो मिट्टी है ना, इफ द फेलियर सरफेस इज हेयर, ओके, पासिंग थ्रू दिस लाइन हेयर एट दिस डेप्थ. सो दिस टेक्स प्लेस फॉर फ्लैट स्लोप्स एंड द सॉइल मास बिलो द टो इज सॉफ्ट एंड वीक, ऑलराइट. बिलो द टो इज सॉफ्ट एंड वीक. यदि यहाँ पे ये सॉफ्ट मिट्टी रहती है, तब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा वेज, ये पूरा का पूरा सॉइल मास, दिस विल बी फेलिंग इन दिस सॉफ्ट जोन, ओके. एंड मे बी अबव द टो इज हार्ड. तो यहाँ पे तो कुछ, लेट से यहाँ पे रिजिड है या फिर हार्ड है, तो यहाँ पे तो कोई फेलियर नहीं कर पाया, बट नीचे वाले में क्या होगा, सॉफ्ट है, तो फेलियर प्लेन क्या किया, यहाँ से पास कर गया, और जो है फेलियर इसके अबाउट हो गया. So these are the 3 types of failure that we have studied. Now let us do the analysis of this infinite slope first, and then we will move on to the another topic in the subsequent lectures of finite slopes. Then we will be studying there the finite slope and how there are different analysis being done there. So let us see, this is the ground surface here and this is the failure plane. So we have to see here this, let AB represents the infinite slope having slope angle of I. यदि आई दिया हो, यदि या फिर कहीं कहीं बीटा दिया हो, तो आप इसको क्या समझोगे, ये चीज़ आई है, ओके. दिस इज द स्लोप एंगल आई, और वी कैन ओनली से, और सम प्लेसेस वी कैन से दैट इट इज बीटा देयर. सो फेलियर ऑफ विच टेक्स प्लेस अलॉन्ग द प्लेन सी डी. अब फेलियर किसके अलॉन्ग हो रहा है, इस प्लेन सी डी के अलॉन्ग हो रहा है. तो ये जो पूरा का पूरा सॉइल मास है, ये फेल यदि हो रहा है तो अपने से किसी पैरेलल डेप्थ पे हो रहा होगा. तो हमने मान लिया कितने पे, जेड डेप्थ पे फेलियर आकर कर रहा हो. अच्छा, हम पूरे के पूरे सॉइल मास को, अभी तो इनफाइनाइट तक है, हम पूरे सॉइल मास को कंसिडर तो कर नहीं सकते. हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटे से वेज को पकड़ेंगे और हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि ये क्या क्या फोर्सेस लगा रहा है वहाँ पे. अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या बातें बता दी. पहली थी ये ग्राउंड सरफेस, ये था फेलियर प्लेन, और ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ आई. ठीक, यदि कहीं कहीं पे बीटा भी लिखा हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो और कहीं पे बीटा लिखा हो, क्वेश्चन में आपके बीटा आता है, सो दैट इज द वन एंड द सेम थिंग, ऑलराइट. सो दैट इज द स्लोप एंगल हेयर. अच्छा, यहाँ पे ए बी सी और डी, इस वेज का हम फेलियर यहाँ पे मानेंगे, ओके. सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझ लीजिएगा. यदि हम इसकी बात कर रहे हैं इस लेंथ की, तो दैट इज बी. यदि मैं एंगल आई मान रहा हूँ, दिस स्लोप एंगल, तो दिस विल बी व्हाट, बी कॉस आई देयर, ऑलराइट. और इस वेज का ये जो ए बी सी डी वाला जो पोर्शन है, इसका वेट कुछ लग रहा होगा नीचे डब्लू. अच्छा, यदि ये डब्लू वेट लगा रहा है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी लगा रहा होगा, और जो ये स्ट्रेस होगा इसको हमने बोला क्या, सिग्मा जेड. तो ये सिग्मा जेड किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये सिमिलरली इन द वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा होगा. अच्छा, ये सिग्मा जेड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, है ना. एक नॉर्मल होगा एक, और एक उसके पैरेलल होगा लाइक दिस वन, है ना. अच्छा, ये जब वेज फेलियर कॉज करेगा
तब क्या होगा, सॉयल क्या करेगी, कुछ ना कुछ इसको रोकने की कोशिश करेगी। यदि सॉयल यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है तो कुछ ना कुछ देरी तक या फिर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तक रोक पाएगी। कितने मैग्नीट्यूड तक रोक पाएगी, जितनी उसकी क्षमता होगी। और क्षमता को हम किससे डिनोट करते थे, दिस शेयर स्ट्रेंथ से। जितनी भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होगी उतने तक वो रोकने का प्रयास करेगी। ओके, सो दैट इज दिस टाउ एफ। अच्छा, जो स्लाइडिंग फोर्सेज हैं वो क्या क्या होंगे, एक तो डब्ल्यू के कारण जो सिग्मा जेड जो आ रहा है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ देयर, एंड जो एक नीचे फोर्स लग रहा है टाउ, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ शेयर फेलियर कॉज करा रहा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि दिस एंगल, अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, है ना, यदि मैं इसके नॉर्मली अगर बात करने लग जाऊँ, है ना, तो दिस इज व्हाट, एक नॉर्मल एंगल पे दिस इज व्हाट सिग्मा। अब इसको मैं सिग्मा बोल दूं या सिग्मा एन बोल दूं, दिस इज वन एंड द सेम थिंग कि नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है। अच्छा, ये जो टाउ है ये भी क्या कर रहा होगा, फेलियर कराने की कोशिश कर रहा होगा। ओके, सो दिस विल बी अपोजिंग दिस, टाउ एफ विल बी अपोजिंग दिस एंटायर फेलियर देयर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, यदि मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच देयर। ऑलराइट, यदि ये बी है, दिस इज द horizontal height here, not the inclined height. If this is the B here and this is the H here, so we can easily find out the area of this entire parallelogram. Okay, तो हम यहाँ पे कुछ बातें यहाँ अभी कर लेते हैं। Now we are considering unit length of the slope in the plane. आप into the plane देख लो या out of the plane देख लो, हमने एक unit length ले रखी है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ इस soil wedge के एरिया की, so area of parallelogram मैंने आपको बताया, so it can be written as Z into this height, this width here, that is b cos I. So this is the area of the soil wedge. Now if you talk about the volume of the soil wedge, so we can easily say that z into b cos I is the area, और हमने कितना लेंथ ले रखा है, into the plane या out of the plane, that is 1 there. So this is the volume of the soil wedge. यदि मुझे वेट निकालना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, गामा का, कि कितना यूनिट वेट है। सो वॉल्यूम मुझे पता है, यूनिट वेट पता है सॉइल का, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट दिस W, वेट ऑफ द सॉइल वेज। अच्छा, वर्टिकल प्रेशर क्या लग रहा होगा, अब आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी होगी कि W की वैल्यू क्या आ रही है, ZB cos I इंटू गामा। ऑलराइट, सो वर्टिकल प्रेशर ऑन द प्लेन CD इज गिवन बाय सिग्मा Z, जो कि W वेट है अपॉन दिस B इंटू 1। अच्छा, ये सिग्मा Z जो भी वैल्यू लग रही है, इसके बाद हम इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग इट हेयर, देन विल बी स्टार्टिंग देयर। ओके, थैंक यू।